Hello, good morning student. In previous lecture, we were discuss about the branching of the respiratory tree or bronchial tree. How many branches are found in the respiratory tree or bronchial tree? That type of structure we are already discuss, we are already understand. Today we will going to discuss about a very important structure that is called structure of alveoli. The structure of alveoli, the end branching of the respiratory tree. It is a balloon-like or bubble-like structure and found in a grouping structure and form a group that is called alveoli, or alveoli is a structural and functional unit of the lungs. The main functional unit of the lungs are called alveoli. Alveoli is a form by surrounding by the many type of cells and layer. The internal layer of the alveoli, that is called alveoli endothelium or alveoli simple squamous epithelial tissue. The simple epithelial squamous tissue or SSET, simple squamous epithelial tissue are made by two type of mainly cell. First is the pneumocyte first cell, then second is the pneumocyte second cell. The pneumocyte first cell also known as the type first cell, and the pneumocyte second cell also known as the type second cell. The maximum amount of the cell are pneumocyte first, or how many number of the pneumocyte first? तो 95% cell near about are pneumocyte first और type first cell. तो ये बातें बच्चों आज हम स्टडी करेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से एक एल्यूलाई एक ब्रांचिंग के रूप में प्रेजेंट होती है. एल्यूलाई वो पैलेस है, वो प्लेस है यहाँ जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, डिफ्यूजन ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेज फ्रॉम एल्यूलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्यूलाई होता है. इन सब चीजों का बच्चों आप अध्ययन करेंगे यहाँ. तो आगे देखिएगा व्हाट डू यू मीन अबाउट द स्ट्रक्चर, व्हाट यू कैन अबाउट द एल्यूलाई, व्हाट यू सीन at the board or the screen, the structure of the alveoli. The alveoli structure is each lobe is further divided into the several lobules by septa of connective tissue. Then each lobule is further divided into the several air sac, and in the end each air sac is lastly divided into 3 or 4 alveoli, which are also termed as the unit of the lungs or structural and functional unit of the lungs. तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ बनती है. देन हम यहाँ पर अपने एक स्लाइड, एक डायग्राम के द्वारा हम यहाँ बता सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेoli. व्हाट यू अंडरस्टैंड the structure of the alveoli. तो the structure of alveoli, the end part of the alveoli और respiratory tree हम यहाँ पर देखेंगे. तो ये हमारे पास में एक स्ट्रक्चर बनती है इस प्रकार से. तो ये that is called alveoli. It is a balloon like structure, and near the alveoli found a blood vascular part. अपन ये कह सकते हैं यहाँ पर ये ब्लड प्रेजेंट है, ये ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट है. इसके बाद में बच्चों देखिएगा ये एल्यूलाई है, इसको हम कहेंगे एल्यूलाई डक्ट. एल्यूलाई डक्ट के नाम से इसे जानते हैं. यहाँ ये एल्यूलर सैक है. यहाँ एक एल्यूलर सैक के अंदर 3 to 4 एल्यूलाई प्रेजेंट होती है, और इसको हम कहेंगे एल्यूलाई वॉल के नाम से जानेंगे. दैट इज कॉल्ड एल्यूलाई वॉल. The alveoli wall is formed by the simple squamous epithelial tissue. There are two type of cell found in the alveoli. The first cell is known as
न्यूमोसाइट फर्स्ट सेल, देन सेकंड टाइप ऑफ सेल है दैट इज कॉल्ड न्यूमोसाइट सेकंड सेल। ओके बच्चों, ये अपनी यहाँ पर ब्लड वेसल्स है दैट इज कॉल्ड ब्लड vessels. The complete alveoli surrounded by a network of the capillaries that is called blood vessels. There are two type of blood vessels found surrounding of the alveoli. The entering of the blood vessels that is called afferent capillaries, afferent arteriole capillaries. In the afferent arteriole capillaries, the blood, deoxygenated blood entering and the exit of the blood vessels that is called venule. They have oxygenated blood. तो इस टाइप से बच्चों एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बनती है। जैसे ये ब्लड यहाँ पर एंटर करता है यहाँ आर्टरी से, ये यहाँ हम कहेंगे ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड का मीनिंग है O2 इसके अंदर है कम है और CO2 इसके अंदर है हायर अमाउंट में है, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर आप कहोगे बच्चों ऑक्सीजन इसके अंदर हायर है और CO2 इसके अंदर कम है। ऐसा कभी नहीं होता कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड में केवल ऑक्सीजन हो और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में केवल कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऐसा कभी नहीं होता। बट ऑक्सीजन की अमाउंट है वो अकॉर्डिंग टू प्रेशर कम या ज्यादा हो जाती है, इस बेस पे हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर लेबलिंग करेंगे। यहाँ तो यहाँ बच्चों न्यूमोसाइट फर्स्ट और न्यूमोसाइट सेकेंड, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल। जो यहाँ गैसेज का डिफ्यूजन करने वाली जो सेल है, गैसेज डिफ्यूजन जो करती है वो सेल कौन सी कर रही है, यहाँ पर न्यूमोसाइट फर्स्ट यहाँ पर कर रही है। इस प्रकार से ये डिफ्यूजन कर रही है। और जो गैसेज सेकंड जो न्यूमोसाइट सेकंड है ये डिफ्यूजन नहीं करती, ये यहाँ पर सरफेक्टेंट रिलीज करती है। अब यहाँ देखिएगा जो न्यूमोसाइट फर्स्ट है वो गैसेज डिफ्यूज कर रही है, यहाँ क्या कर रही है, इससे जैसे ब्लड आएगा तो CO2 इस ब्लड वेसल से एंटरिंग इनटू द एल्यूलाई एंड यहाँ से वापस फिर एक ऑक्सीजन है वो यहाँ कम इनटू द ब्लड है। तो इस प्रकार कंटिन्यू ऑक्सीजन है फ्रॉम एल्यूलाई टू ब्लड है वो यहाँ डिफ्यूज होती रहती है, और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के अंदर आ रही है उसे कंटिन्यू हम यहाँ पर एल्यूलाई के अंदर डिफ्यूज करते रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ एक्सचेंज ऑफ द गैसेज की मेन साइट है। ये जो भी गैसेज एक्सचेंज हो रही है उसकी मेन साइट है कौन है, तो हम अपन कहेंगे यहाँ ये साइट है जो एक मेम्ब्रेन बना रही है। इस मेम्ब्रेन को हम यहाँ पर कहेंगे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहेंगे। यहाँ अब यहाँ इसके अलावा कुछ और सेल भी यहाँ प्रेजेंट है। एक सेल है यहाँ न्यूमोसाइट सेकंड सेल है। न्यूमोसाइट सेकंड सेल का क्या काम क्या है, दे आर सीक्रेट सरफेक्टेंट। इसका सीक्रेशन कौन कर रहा है, इसका सीक्रेशन यहाँ पर न्यूमोसाइट सेकंड सेल कर रही है। सरफेक्टेंट का क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सरफेक्टेंट। तो सरफेक्टेंट जैसे जैसे यहाँ पर रिलीज होता है बच्चों देखिएगा, तो सरफेक्टेंट रिलीज हो रहा है, they are decrease the surface tension in the alveoli, in the wall of the alveoli and prevent collapsing of the alveoli during the breathing। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर करता है। सरफेक्टेंट की बात करें यहाँ, तो यहाँ मुख्य जो मेनली सरफेक्टेंट है उसको हम कहेंगे यहाँ पर लेसिथीन इज ए सरफेक्टेंट जो फॉस्फोलिपिड से यहाँ पर फॉर्म है। इसके बाद में बच्चों एक सरफेक्टेंट और भी होता है जिसे हम यहाँ पर कहेंगे है DAPP डाइफॉस्फोपॉलिमिटाइल एसिडी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो DPPC के नाम से DPPC डाइपॉलिमिटाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, इसका पूरा नाम अपन कह सकते हैं डाइपॉलिमिटाइल
पोलमेटाइल फॉस्फोटिडाइल कोलिन। ये बच्चों एम्स के अंदर क्वेश्चन है वो पूछा गया है, एग्जामिनर इस प्रकार का क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। व्हाट डू यू मीन अबाउट द डीपीपीसी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। डीपीसीपीसी क्या होती है? डाई पोलमेटाइल फॉस्फोटिडाइल कोलिन इज ए फुल फॉर्म ऑफ द डीपीपीसी। डीपीपीसी क्या है? तो यहाँ पर मोस्ट फेमस सरफेक्टेंट यहाँ पर है जो न्यूमोसाइट सेकंड सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है। ये भी एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है और ये कंटिन्यू रिलीज होके और कॉन्ट्रैक्शन से या प्रस्थ तनाव को कम करके और एल्यूलाई को और लंग्स को पिचकने से बचाता है। तो जो आपने देखा होगा, जो बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेने से पूर्व उनके फेफड़े नॉन फंक्शनल होते हैं, काम नहीं करते उनके ढंग से। उसमें कौन काम नहीं करता? तो काम यहाँ पर आप देखोगे एल्यूलाई है वो नॉन फंक्शनल होती है। यहाँ गैसेज ऑफ द एक्सचेंजेज है वो नहीं हो पाता है। किसके अंदर? जब बर्थ से पहले जो बेबी होता है उसके अंदर। लेकिन बर्थ के तुरंत बाद वो फंक्शनल हो जाते हैं लंग्स और एल्यूलाई। ऐसा क्यों होता है? इसलिए बच्चों बर्थ से पहले यहाँ सरफेक्टेंट रिलीज नहीं होता और सरफेक्टेंट न बनने के कारण यहाँ फेफड़े है वो कोलैप्स रहते हैं और फंक्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन आफ्टर बर्थ जैसे ही न्यूमोसाइट सेकंड सेल है वो सरफेक्टेंट रिलीज करेगी, तो यहाँ पर जो एल्यूलाई है उसमें यहाँ स्ट्रेचिंग हो जाएगी, एल्यूलाई यहाँ पर उसमें स्वेलोइंग हो जाएगी, फूल जाएगी यहाँ पर एल्यूलाई, और जो तुरंत क्या फेफड़े लंग्स और एल्यूलाई है वो फंक्शनल हो जाती है और गैसेज का डिफ्यूजन करती है। तो उस समय इनिशियल टाइम में वो या कोलैप्स रहती है एल्यूलाई। तो क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द सरफेक्टेंट डीपीपीसी एब्सेंट होता है। लेकिन उसके बाद में बच्चों जन्म के बाद डीपीपीसी है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाता है, डीपीपीसी वहां पर रिलीज शुरू हो जाता है, डीपीपीसी का सीक्रेशन हो जाता है जिससे वो बच्चा ब्रीथ करने लगता है और एल्यूलाई कोलैप्स नहीं होती है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चा जैसे जन्म लेता है तो लंग्स नॉन फंक्शनल रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि सरफेक्टेंट है वो सफिशिएंट अमाउंट में बच्चों सीक्रेट नहीं होता है, जिसके कारण वो कोलैप्स रहते हैं और उसके कारण कभी बच्चे की डेथ भी हो जाती है। इसे हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। दैट कंडीशन नोन एज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ सरफेक्टेंट का फंक्शन अपन बता सकते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर कुछ स्पेशल सेल और भी होती है। इस सेल को हम कहते हैं डस्ट सेल। डस्ट सेल ऑल्सो फाउंड इन द वॉल ऑफ द एल्यूलाई। What do you mean about the dust cell and what is the function of the dust cell? The dust cell is a macrophage cell of the lungs. Macrophage cell of the lungs. ये क्या कर रही है? When the any type of bacteria, microbe and foreign particle are come into the lungs, come into the alveoli, the dust cell or dust cell secretion attack on the foreign particle and they will kill on protect from the body। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। कौन? डस्ट सेल है वो प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं मैक्रोफेज सेल है वो कहते हैं। इसके अंदर लाइसोसोम है वो अत्यधिक अमाउंट में होते हैं यहाँ पर। तो इस टाइप से बच्चों एक स्ट्रक्चर बनती है हमारे अंदर। एल्यूलाई की जो स्ट्रक्चर बनती है, एल्यूलाई एक ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं। तो ग्रुप के रूप में कैसे हम कह सकते हैं कि इनिशियल टाइम में जो लंग्स है, ये मान लो हमारे लंग्स है, लंग्स फिर डिवाइड होता है लोब के अंदर। लंग्स है वो डिवाइड होता है यहाँ लोब के अंदर। लोब है फिर यहाँ पर डिवाइड होती है लोब्यूल के अंदर। ध्यान रखने यहाँ पर लोब्यूल के अंदर। इस लोब्यूल के अंदर पाए जाते हैं एयर सैक पाए जाते हैं। यहाँ एयर सैक इसका फर्दर डिवीजन होता है। एयर सैक प्रेजेंट है। एयर सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई यहाँ पर प्रेजेंट है। तो एंड जो पार्ट है, एंड जो स्ट्रक्चर है वो बच्चों क्या बनती है? उसको हम कहेंगे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एक्चुअल में क्या कर रही है? तो हम कह रहे हैं कि ये द इंक्रीज ऑफ द ब्रीदिंग एरिया, सरफेस एरिया फॉर द ब्रीदिंग
सरफेस एरिया फॉर द रेस्पिरेशन। दोनों लंग में हम यहाँ पर कहें कि बोथ लंग है उसमें नंबर ऑफ एल्यूलाई कितनी हो सकती है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन बनता है तो आपका होगा 300 मिलियन एल्यूलाई आर फाउंड इन ए ह्यूमन बॉडी आर फाउंड इन बोथ लंग्स। हाउ मेनी एल्यूलाई आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन और बोथ लंग्स, तो हम कहेंगे कितने 300 मिलियन एल्यूलाई है वो बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। अब ये 300 मिलियन एल्यूलाई है, ये कितना एरिया इंक्रीज करेगी यहाँ, तो 70 मीटर स्क्वायर द रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया विल इंक्रीज। तो इतना एरिया है वो इंक्रीज करती है। ये बच्चों यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। एग्जामिनर कैन बी आस्क अबाउट द एल्यूलाई और दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द कमिंग एग्जाम। तो ये आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि एक एल्यूलाई है वो किस प्रकार से यहाँ प्रेजेंट होती है। क्लियर यहाँ तक? एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर है, आप नॉलेज यहाँ पर रखते हो, आप समझ चुके हो यहाँ पर। तो ये हम आगे समझा सकते हैं एक नई स्लाइड के द्वारा यहाँ। तो अब देखिएगा ये एक ब्यूटीफुल एनिमेशन के रूप में, एक स्लाइड के रूप में एक डायग्राम लिया गया आपके पास में। ये एक ग्रुप ऑफ द एल्यूलाई है, आप देखिए ए ग्रुप ऑफ द एल्यूलाई ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, दे आर सराउंडेड बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू that is called a connective tissue. What type of tissue found है surrounding of the alveoli, तो हम कहेंगे बच्चों यहाँ पर connective tissue से यहाँ पर surrounded है। यहाँ पर some special type of sac है that is called the alveolar sac. Each alveolar sac have 3 to 4 alveoli balloon like structure. Each alveolar sac have a duct-like structure that is called the alveolar duct. In the alveolar duct, a special type of mucus-secreting glands are present that is called mucus gland and mucosal lining. Inside of the alveolar duct, the entering of the blood vessels and exiting of the blood vessels, that is called pulmonary artery and pulmonary vein. Pulmonary artery have deoxygenated blood as well as the pulmonary vein have oxygenated blood are found in the pulmonary vein and the deoxygenated blood are present in the pulmonary artery. From the pulmonary artery, the blood entering into the lungs, entering into the alveoli. कंप्लीट एल्यूलाई आप देखिएगा इस प्रकार से ये सराउंडेड है। इसके अंदर जो एल्यूलर सैक है इसमें जो लोबुलर स्ट्रक्चर है इसको हम एल्यूलाई कहेंगे, और इसमें जो चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे एट्रियम कहेंगे। यहाँ पर ट्यूब्यूल्स जो ओपन हो रही है एल्यूलाई में इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एट्रियम कहते हैं। बच्चों देखिए एल्यूलाई अपने लंग्स के अंदर भी है, कई बार एल्यूलाई अपने बॉडी के और पहले प्लेस है वहां पर भी है। कौन सा प्लेस है तो हम आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। हमारी जो मेमोरी ग्लैंड है फीमेल के अंदर वेल डेवलप मेमोरी ग्लैंड है। इस मेमोरी ग्लैंड के अंदर भी इस टाइप से एल्यूलाई प्रेजेंट होती है जो मिल्क सीक्रेशन करती है, मिल्क का फॉर्मेशन करती है। तो या लंग्स के अलावा द एल्यूलाई फाउंड इन द मेमोरी ग्लैंड the alveoli function is the secretion of the milk for the nutrition of the baby. तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर बन रही है जिसमें एक नेट बन रहा है, इस बीड को हम कहेंगे कैपिलरी बीड। कैपिलरी बीड वो प्लेस है जहां पर आर्टरी और वेन कैपिलरीज है, बोथ आर कनेक्ट, तो इसको हम कहेंगे कैपिलरी बीड। तो ये एक स्लाइड, ये एनिमेशन बच्चों आप यहाँ समझ गए होंगे। तो इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल स्लाइड। अब एक और यहाँ पर एक एनिमेशन है, आप देखिएगा
कि ये एल्यूलाई है, कैसे यहाँ पर है, इसमें एयर एंटर करती है और ये कैसे फूलती है। इसके चारों तरफ आप देखिए क्या एक ब्लड कैपिलरीज का एक नेट है जो कंटिन्यू है, वो गैसेस एक्सचेंज करने में यहाँ पर हेल्पफुल है एल्यूलाई के साथ में। तो ब्लड कैपिलरीज में आपको बताया था देयर आर टू टाइप ऑफ ब्लड कैपिलरीज, आर्टरी कैपिलरीज और वेन कैपिलरीज। तो इस बात को हम यहाँ पर इस एनिमेशन के द्वारा समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट हम यहाँ अपने स्क्रीन पर देखें, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग इज कॉल्ड एल्यूलाई। यहां से बच्चों क्वेश्चन फ्रेम करता है एग्जामिनर कि द फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द एल्यूलाई इज, आंसर होगा लंग्स इज, आंसर होगा यहाँ पर एल्यूलाई। Approximately 300 million alveoli are present in both lungs। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बच्चों फ्रेम कर सकता है कमिंग एग्जाम के अंदर कि हाउ मेनी एल्यूलाई फाउंड इन ए सिंगल लंग्स। तो बोथ लंग की बात कर रहा है, तो बोथ लंग के अंदर क्या है, यहाँ पर बोथ लंग के अंदर 300 मिलियन एल्यूलाई बता रहा है। तो सिंगल लंग्स में क्या हो जाएगी, 1.5 मिलियन एल्यूलाई आर प्रेजेंट इन ए लंग्स। देन इनर एल्यूलर सरफेस एरिया ऑफ द बोथ लंग इज अप्रोक्सीमेटली 70 मीटर स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी कई बार फ्रेम किया गया है इन प्रीवियस एग्जाम में। तो आप एक एक वर्ड यहाँ पर, एक एक शब्द यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर रखें और मैं आई होप यू हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एल्यूलाई। देन नेक्स्ट हम देखें यहाँ, वॉल ऑफ एल्यूलाई कंसिस्ट ऑफ द टू लेयर। आउटर लेयर इज ए कंपोज्ड ऑफ द येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, inner layer is composed of the simple squamous connective tissue. The squamous cell are called as pneumocyte cells। The squamous cell है उसको हम क्या कहेंगे यहाँ, तो हम कहेंगे यहाँ पर ये एक न्यूमोसाइट सेल है। दैट इज टू टाइप ऑफ न्यूमोसाइट। तो न्यूमोसाइट फर्स्ट है, हम कहेंगे न्यूमोसाइट जो है, न्यूमोसाइट यहाँ टू टाइप है। एक न्यूमोसाइट फर्स्ट सेल, इसे टाइप फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, टाइप फर्स्ट कहेंगे, जो टोटल सेल की 90 to 95% होती है। और सेकंड जो सेल है बच्चों, ये क्या है, न्यूमोसाइट सेकंड, जिसे हम टाइप सेकंड भी कहते हैं। टाइप सेकंड की अमाउंट लगभग 5% होती है। इसी प्रकार एक थर्ड टाइप की सेल आपको और बताई थी, वो है यहाँ पर डस्ट सेल। डस्ट सेल भी यहाँ पर पाई जाती है। डस्ट सेल क्या है, यहाँ मैक्रोफेज नेचर की, डस्ट सेल मैक्रोफेज नेचर की सेल है। तो इस प्रकार से आप इन सेल के बारे में आप समझ सकते हैं बच्चों। देन most of these pneumocyte first help in the gaseous exchange, while few pneumocyte second, which are larger in size, secrete lecithin phospholipid. This act as the surfactant which prevent alveoli from remaining collapsing by reducing its surface tension। तो ये सरफेक्टेंट क्या करेगा, सरफेक्टेंट ये इंक्रीज होगा, तो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज होगा। तो ये एक फॉर्मूला हम यहां बता सकते हैं। सरफेक्टेंट कौन रिलीज करता है, विच टाइप ऑफ सेल द सीक्रेट ऑफ द सरफेक्टेंट। तो आपका बच्चों आंसर क्या आएगा, the pneumocyte second cell is a secret release of the surfactant। What is the name of surfactant? The most common surfactant is lecithin। The modified surfactant known as the DPPC, dipalmityl phosphatidyl choline, is a most important derived surfactant। It is also related to phospholipid। ओके बच्चों, आगे हम देखें यहाँ
alveoli internal surface is termed as the respiratory surface. It is derived from the endodrome. It is very important question कि इनर सरफेस या रेस्पिरेटरी सरफेस है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या है, तो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है वो एंडोडर्मल ओरिजिन है ऑफ द एम्ब्रियो. एम्ब्रियोनिक कंडीशन में द मिडल पार्ट ऑफ द एल्यूलाई वॉल इज द मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. तो इसको हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे, जो मिडल वॉल है वो फॉर्म रहती है. It is richly supplied with the blood capillaries. A dense network of blood capillaries form in the alveoli. हमने डायग्राम में बच्चों देखा था the complete alveoli surrounded by a dense capillaries, dense network of the capillaries. There are two type of capillaries. First is artery capillaries or second is venule capillaries. Both are connected by a bead-like structure and diffuse of the gases from the alveoli and blood to alveoli. तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ हमने एक डायग्राम के द्वारा देखा था, वो यहाँ प्रेजेंट होती है. These capillaries from a dense network in the wall of the alveoli. Then there are small pore present in the wall of alveoli. That is called pore of Kuhne. इसको क्या कहेंगे बच्चों, पोर ऑफ कुहने. कुहने, पोर ऑफ कुहने. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर. दीज पोर मेक डिफ्यूजन फॉर द गैसेज इजी. ये पोर क्या करते हैं, गैसेज का डिफ्यूजन को इजी बनाते हैं. दीज पोर आर कॉल्ड द पोर ऑफ कुहने. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमेलियन और ह्यूमन लंग्स दैट आर इन is no central cavity. The mammalian human lungs are solid and spongy. It is very important question. The examiner can be asked that type of question. The human lungs are, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा यहाँ पर solid and spongy type of lungs. तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ह्यूमन लंग्स कैसे है, सॉलिड भी है और साथ में स्पंजी टाइप के लंग्स भी यहाँ प्रेजेंट है. अब यहाँ एक क्वेश्चन है, पोर ऑफ कुहन क्या है. तो बच्चों हमने एल्यूलाई की स्ट्रक्चर जब पढ़ी थी, तो यहाँ एल्यूलाई की जब स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, ये एल्यूलाई ये है, इसके अंदर यहाँ कुछ ऐसे पोरस स्ट्रक्चर होती है. ये कोई पोरस स्ट्रक्चर है, ये जो गैसेज के डिफ्यूजन में ये हेल्पफुल है. ऐसे पोरस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, पोर ऑफ कुहने. पोर ऑफ कुहने के नाम से जानते हैं. तो इस टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होती है. देन नेक्स्ट इज द मसल्स आर एब्सेंट इन द लंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज मैमल्स. कंप्लीट आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डज नॉट फाउंड ऑफ द एनी टाइप ऑफ मसल्स इन द लंग्स. उससे क्या इफेक्ट आएगा, सो द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन. When the muscles are absent in the complete lungs, so the power of the self contraction and self expansion is absent in these lungs. That type of lungs known as sucking lungs. That type of lungs that is called sucking lungs. It is a very important statement कि lungs सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और सेल्फ एक्सपेंशन कैपेसिटी है वो उसके अंदर नहीं है, वो उसके अंदर अब्सेंट है. तो ऐसे लंग्स को हम क्या कहेंगे, सेकंड टाइप ऑफ लंग्स कहेंगे. तो लंग्स के अंदर गैसेज जो है वो ट्रांसफर कैसे होती है, वो प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है. हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है वो ब्रीदिंग की क्रिया अपने अंदर होती है. तो ये बात है अभी यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई है अपने अंदर. इसके बाद में एक यही बच्चों एक पॉइंट बनता है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. व्हाट डू यू मीन अबाउट द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन? तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन दैट प्लेस द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज फ्रॉम ब्लड टू लंग्स एंड लंग्स टू blood. That type of membrane is called respiratory membrane. The respiratory membrane formed by three type of structures. How many structures? There are three type of structures. First structures involve
involvement of the alveoli, the second structure involvement of the basement membrane, and the third structure involvement of the blood capillaries endothelium. तो ये हम यहाँ पर बता सकते हैं कि एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, उसका इन्वॉल्वमेंट कैसे कैसे होता है. रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज ए वेरी थिन. The diameter of the respiratory membrane is a 0.5 mm, about 1/16 the diameter of a red blood cell RBC, to allow rapid diffusion of the gases. It has been estimated that the lungs contain 300 million alveoli, provide an immense surface area of 70 meter square for the gases exchange. तो ये बच्चों यहाँ पर है, हम यहाँ बता सकते हैं, एक स्लाइड के द्वारा यहाँ बता सकते हैं. देखिए रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, उससे क्या आप समझते हो. तो हमारा टॉपिक क्या है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. व्हाट डू यू मीन अबाउट द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. तो देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. फर्स्ट इज एल्यूलाई. एल्यूलाई के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर कि एल्यूलाई की जो सेल है, एपिथेलियल सेल है, वो सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल सेल. फर्स्ट सेल इज एल्यूलाई. एल्यूलाई सेल विच टाइप ऑफ सेल, तो आप कहोगे यहाँ पर सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल सेल, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल सेल, दैट इज कॉल्ड एल्यूलाई सेल. इस प्रकार से हमें स्क्यूमस टाइप की सेल आप बना सकते हो. ये सेल हो सकती है, ऐसे ये सेल है. देन सेकंड टाइप ऑफ सेल है, आप कहोगे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर आप बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे. बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एल्यूलाई एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड कैपिलरीज. 2 टाइप ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई यहाँ. इसे को हम कहेंगे एल्यूलाई, एल्यूलाई सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू. देन नेक्स्ट सेल को हम कहेंगे यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्यूलाई. देन थर्ड लेयर को अपन कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम से. आपको टिश्यू के अंदर आपने यहाँ पर स्टडी कर रखी है कि जहां एपिथेलियल सेल होगा वहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ फॉर्म रहती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड से. यहाँ एक जेली लेयर है. इसके बाद में इसके नीचे जो एंडोथेलियल सेल है, इसके नीचे जो सेल पाई जाती है वो सेल कौन सी होगी बच्चों, उसको हम कहेंगे एंडोथेलियल सेल. एंडोथेलियल सेल ये इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, इस प्रकार की सेल है, इस सेल को आप एंडोथेलियल सेल यहाँ पर कहेंगे. तो ये एक लेयर बन गई, इसको हम कहते हैं बच्चों एंडोथेलियल लेयर. एंडोथेलियल लेयर मींस कैपिलरीज की लेयर है. ये एंडोथेलियल लेयर किसकी लेयर है, कैपिलरीज की लेयर है. अब यहाँ पर इसके बीच बीच में कुछ पोरस स्ट्रक्चर भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रखें. यहाँ पर कुछ पोरस स्ट्रक्चर भी है. इस पोरस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पोर ऑफ कोहेने, पोर ऑफ कोहेने. अब ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, ये यहाँ जेली लेयर है, ये यहाँ पर जेली लेयर है, पूरा का पूरा, जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं. अब आप देखो यहां से गैसों का यहाँ डिफ्यूजन होता है इस प्रकार से. ये पूरी की पूरी यहाँ पर क्या ब्लड वेसल्स है यहाँ, तो इसके अंदर ब्लड रहता है, ये डिफ्यूजन यहाँ पर होता है. इसी प्रकार यहाँ पर ये गैसों का डिफ्यूजन यहाँ होता है. तो ये मेम्ब्रेन क्या कर रही है, यहाँ डिफ्यूजन में हेल्पफुल है. इस प्रकार से ये दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में गैसें यहाँ ट्रांसफर हो रही है. इस साइड में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर हो रही है, तो इस साइड में यहाँ पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. तो इसे बच्चों हम बहुत अच्छी तरह अब समझ चुके हैं कि किस प्रकार से रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हमारे अंदर होती है. इसके बाद आगे चले, आप देखिएगा हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें कि किस प्रकार से ये बनी रहती है. तो इट कंसिस्ट ऑफ दी 4 लेयर. फर्स्ट इज ए लेयर ऑफ टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड एल्यूलर सेल and associated alveolar macrophage
दैट कंस्टिट्यूट द एल्यूलर वॉल। तो एल्यूलर वॉल का कंस्टिट्यूट है टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और मैक्रोफेजेज लाइक डस्ट सेल आर फाउंड इन द एल्यूलर वॉल and epithelial basement membrane underlying the alveolar wall। तो सेकेंडरी लेयर यहाँ पर क्या कौन सी होगी, यहाँ एल्यूलर वॉल की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो होगी एंड ए कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन दैट इज ऑफन fused to the epithelial basement membrane and fourth is the capillary endothelium also found in the respiratory membrane। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनती है। ये एक आपके सामने सुंदर सा डायग्राम लिया गया है, इसमें ये एक मेम्ब्रेन दिखाई गई है, एपिथेलियल मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये एल्यूलर एपिथेलियम है, यहाँ पर ये फ्लूइड सरफेक्टेंट वो रिलीज हो रहा है यहाँ, और ये दिखाया गया है यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा है। देखिएगा ये ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन यहाँ पर हो रहा है, ये ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो रहा है। ये जो एरो दिखा रहा है इससे क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ये रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर क्या जाएगी, ये ऑक्सीजन चली जाएगी यहाँ पर। ये कैपिलरीज का पार्ट है, कैपिलरीज का बेसमेंट है, ये कैपिलरीज की एंडोथेलियम सेल है जो है सिंपल है स्क्यूमस है, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। कौन, कैपिलरी एंडोथेलियम बनी हुई है। इस प्रकार से एक बहुत ही सुंदर डायग्राम आपके सामने लिया गया है। इसके बाद में बच्चों आगे देखें, हम यहाँ एक वीडियो के द्वारा हम इसे देख सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये वीडियो। The gaseous exchange in the alveoli, movement of oxygen into the blood and carbon dioxide out of the cell. That type of structure, the moving structure known as the alveoli, alveolar sac, in the alveolar sac found of the alveoli। तो ये पूरे जो ऐसे गेंद लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, ये एल्यूलाई की स्ट्रक्चर है। Each alveoli is surrounded by a blood capillaries that are two type of capillaries, blue color capillaries known as pulmonary artery and the red color known as the pulmonary vein। तो इसके प्रकार से ये एक्सचेंज ऑफ द गैसेज यहाँ पर कर रही है ये। तो यहाँ ये एल्यूलाई में दिखाया गया है, ये एल्यूलाई है, सराउंडिंग ऑफ द ब्लड है, इसमें यहाँ ये इधर से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन ये है। तो इसमें से यहाँ CO2 है वो रिलीज हो रही है, इसमें से यहाँ पर O2 है वो ब्लड के अंदर आ रही है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई गई है। तो ये एक होल है, इसके अंदर से क्या है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, इसके अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हैं ये। तो ये आपके सामने यहाँ दिखाया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो जैसे ही ब्लड आएगा वो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर चली जाएगी, ब्लड के अंदर। एक बड़ा एरिया, बड़ी ब्यूटीफुल स्लाइड है जिसमें आरबीसी के कंटिन्यूस ले जा रही है, ऑक्सीजन ले जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रही है। तो दैट टाइप ऑफ एनिमेशन, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एनिमेशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ this type of a topic or structure of the alveoli or the transportation and the diffusion of the gases। तो इसको हम यहाँ पर बच्चों समझ चुके हैं। यहाँ अब ये एक बात अपनी कंप्लीट हुई कि स्ट्रक्चर ऑफ द एल्वेoli क्या थी, मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या थी, इसे हम बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। देन नेक्स्ट एक पॉइंट आता है यहाँ पर थोरेसिक कैज। व्हाट डू यू मीन अबाउट द थोरेसिक कैज? थोरेसिक कैज क्या है, किसे हम कहेंगे यहाँ, द कवरिंग ऑफ द थोरेसिक कैविटी मैक थोरेसिक कैज। अपने थोरेसिक रीजन के अंदर जो थोरेसिक कैविटी है वो बना रही है, यहाँ पर थोरेसिक कैज बना रही है। इसका एक एंटीरियर सरफेस है जो बनता है क्लेविकल बोन और नेक पार्ट से। देन पोस्टीरियर सरफेस है वो यहाँ पर फॉर्म होता है डायफ्राम से। देन डोर्सल सरफेस है वो फॉर्म होता है यहाँ पर वेंट्रल वर्टिबल कॉलमन और रिब्स से यहाँ पर ये फॉर्म हो रहा है। वेंट्रल सरफेस यहाँ है स्टर्नम और रिब्स से भी यहाँ फॉर्म हो रहा है। लेटरल सरफेस है उसमें क्या पाया जाता है, रिब्स यहाँ पाई जाती है। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होती है। हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसके अंदर और क्या एसेसरी स्ट्रक्चर में क्या होती है, तो डायफ्राम होता है, रिब्स पाई जाती है। डायफ्राम देखिएगा क्या है, इट इज ए मस्कुलर सेप्टम विच इज फाउंड ओनली इन द मैमल्स एक्सेप्शन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर भी है।
normal shape of it dome shaped which divided body cavity into two parts, upper thoracic cavity and lower is abdominal cavity. That type of structure known as a diaphragm. Then the radial muscles are present in diaphragm. By the contraction in these muscles, the diaphragm become flattened in the shape, so volume of the thoracic cavity is increased and therefore the diaphragm help in the inspiration और expiration. तो मोस्टली यहाँ पर ये आप बता सकते हो कि डायफ्राम इसमें हेल्प रहता है. एक स्लाइड के द्वारा हम देखें कि कैसे यहाँ पर डायफ्राम की स्ट्रक्चर है. आप देखें डायफ्राम की स्ट्रक्चर एक्चुअल में होती क्या है. तो देखिए बच्चों कि हमारे अंदर जो बॉडी कैविटी है, ये बॉडी कैविटी है. इस बॉडी कैविटी में यहां पर डायफ्राम है. ये डायफ्राम की एक्चुअल पोजीशन ये रहती है. इस पोजीशन को हम कहेंगे डोम शेप्ड. डायफ्राम की ये जो पोजीशन है इसे आप क्या कहोगे, डोम शेप्ड कहेंगे. ये पोजीशन रहती है जब रिलैक्सेशन कंडीशन होती है, जब विश्राम प्रावस्था होती है, तब इसी प्रकार की स्थिति पाई जाती है. इस डायफ्राम के अंदर यहां पर मसल्स है, स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स है. इस मसल्स को हम कहेंगे रेडियल मसल्स. द डायफ्राम कंटेन ए स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स दैट इज कॉल्ड रेडियल मसल्स और फ्रेनिक मसल्स. फ्रेनिक मसल्स, ओके, that are called phrenic muscles. Some special type of neuron are entering into the diaphragm. That type of neuron known as the phrenic neuron. The radial muscles, it is a very important muscles. It is a voluntary muscles. Voluntary muscles, but function as a involuntary. Involuntary के रूप में यहाँ पर ये फंक्शन कर रही है. ये जो डायफ्राम है इसका अपर सरफेस है, इसको हम कहेंगे थोरेसिक कैविटी. थोरेसिक कैविटी के नाम से जानेंगे. और नीचे का जो सरफेस है, इस सरफेस को हम कहेंगे यहां पर एब्डोमिनल कैविटी. तो ये इस प्रकार से डायफ्राम यहां पर फॉर्म कर रहा है. अब देखिए इस डायफ्राम के कारण यहां पर एक थोरेसिक कैविटी में एक कॉज बनता है, केज बनता है, एक बॉक्स बनता है. इसे रेस्पिरेटरी केज और रेस्पिरेटरी बॉक्स भी कह सकते हैं. ए स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है फाउंड इन द सराउंडिंग ऑफ द थोरेसिक कैविटी दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी बॉक्स. कैसे बनता है ये रेस्पिरेटरी बॉक्स बच्चों, तो हम देखेंगे ये रेस्पिरेटरी बॉक्स के बारे में देखें. तो इसमें कई साइट होती है रेस्पिरेटरी बॉक्स में. तो यहां हम एक ऐसा जगह बनाते हैं कि ये एक एरिया बनाया, ये एक बोन के रूप में एरिया है, इसको हम कहेंगे यहां पर स्टर्नम. इस एरिया को हम कहेंगे स्टर्नम या स्टर्नल पार्ट. तो स्टर्नम है बच्चों, जैसे हम देखते हैं कि ये स्टर्नम क्या है. तो स्टर्नम हमारे अंदर है, इस प्रकार से प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर है. ये एक बोनी स्ट्रक्चर है जिसे हमें ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं. हमारा जो ये एरिया है वेंट्रल पार्ट है, इसको हम कहेंगे स्टर्नम. इसके बाद में एक एरिया और दिखाया गया है, इस एरिया को हम यहां इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं. या ये जो एरिया है बाहर की साइड में चेंजेज होता है, ये एरिया यहां पर चेंजेज नहीं होता है. या तो इस एरिया को हम यहां कहेंगे यहाँ, इससे ये बोन, ये एक बोनी पार्ट है ये बच्चों. इसमें ये आप देखिएगा, ये एक बोनी पार्ट है. ये बोनी पार्ट है. ये बॉडी का अपना डोर्सल रीजन है, ये बॉडी का अपना वेंट्रल रीजन है. ओके, इस डोर्सल रीजन के अंदर ये वर्टिब्रल कॉलम यहां पर प्रेजेंट है. vertebral column which is a part of a dorsal part of the body and the ventral part of the thoracic cage known as found as a sternum.
दैट इज कॉल्ड एंटीरियर पार्ट ऑफ द थोरेसिक कैज, इसको हम कहेंगे नेक रीजन, यहां पर नेक। दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थोरेसिक रीजन, दिस इज कॉल्ड अ डायफ्राम। Diaphragm. In between the sternum, diaphragm and vertebral column found a large cavity that is called thoracic cavity. Thoracic cavity. It is a large cavity. In the thoracic cavity found a special respiratory organ that is called lungs. लंग्स बच्चों कहां प्रेजेंट होते हैं? इसी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो यहां इसमें लंग्स है। अब यहां देखिएगा, इस लंग्स के बाहर एक प्रेशर बनता है, इसे कहेंगे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। लंग्स के अंदर एक प्रेशर बनता है, इस प्रेशर को हम कहेंगे इंटर पल्मोनरी प्रेशर कहेंगे। ये तो पूरी की पूरी ब्रीदिंग की क्रिया डिपेंडेड ऑन द इंट्रा और इंटर पल्मोनरी प्रेशर। हमारे अंदर जो सक्शन प्रकार के लंग्स होते हैं, मसल्स हमारे लंग्स में होती नहीं है, तो जो ब्रीदिंग होती है वो एक नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है। इस प्रकार की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे अंदर जो ब्रीदिंग होती है, इस ब्रीदिंग को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग कहेंगे। जबकि फ्रॉग जो है, इस फ्रॉग के अंदर जो ब्रीदिंग होगी बच्चों, वो पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है। पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग इसके अंदर, फ्रॉग के अंदर। और हमारे अंदर ब्रीदिंग कैसी है? यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये बात हम बच्चों बहुत अच्छी तरह यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया है कि किस प्रकार से एक थोरेसिक कॉज डेवलप है, कॉज पाया जाता है। ओके, आगे हम देखें यहाँ एक स्ट्रक्चर और देखें यहाँ एक स्लाइड के द्वारा कि हमारे लेटरली जो है वो रिब्स पाई जाती है। यहाँ रिब्स के अंदर देखिए बच्चों कितनी रिब्स होती है, तो वुमन के अंदर 12 पेयर रिब्स प्रेजेंट है। जो रेस्पिरेटरी कॉज बनाने में यहाँ पर लेटरली साइड में यहाँ देखिएगा, ये जो एरिया है, इस एरिया के चारों तरफ यहाँ पर क्या है? रिब्स प्रेजेंट है, और अंदर क्या है? लंग्स प्रेजेंट है। रिब्स ऑल्सो हेल्पफुल इन द रेस्पिरेशन, डायरेक्टली नहीं होती। रिब्स के अंदर जो है, दो रिब्स के बीच में स्पेशल मसल्स है, that is called intercostal muscles. Intercostal muscles, that is two type of muscles. First is external intercostal muscles. First is external intercostal muscles, short में इसे EICM भी कहते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स आल्सो नोन एज EICM, एंड द सेकंड टाइप ऑफ मसल्स नोन एज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, IICM, आल्सो नोन एज IICM। External intercostal muscles helpful in the inspiration. When the external intercostal muscles are contracted, then inspiration will be completed. Then external intercostal muscles, what is the function of that type of muscles? During the forceful breathing, which are helpful for the respiration. What type of muscles? Internal intercostal muscles are also helpful in the forceful breathing. Otherwise, does not have any type of function by the internal intercostal muscles. तो ये यहाँ muscles that are found, that is found in between the muscles. अब ये muscles कहाँ होती है, कैसी होती है? तब देखिएगा, मान लो हमारा ये स्टर्नम है, यहाँ हम स्टर्नम बताएं, ये स्टर्नम है, तो ये मसल्स क्या होगी? यहाँ पर 12 पेयर मसल्स है, तो 1 2 3 4 5 6
7 ये मसल्स है 1 2 3 4 5 6 7 मसल्स है। ये जो मसल्स है फर्स्ट 7 1 to 7 मसल्स है, इसको हम कहेंगे ट्रू रिब्स, और ट्रू रिब्स के बीच में जो मसल्स है उसको ट्रू मसल्स के नाम से कहेंगे। ट्रू मसल्स मीनिंग इंटरनल इंटरकोस्टल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। 12 पेयर ऑफ रिब्स है जिसमें फर्स्ट 1 to 7 पेयर ऑफ रिब्स है नोन एज ट्रू रिब्स। देन सेकंड टाइप ऑफ रिब्स, सेकंड टाइप ऑफ रिब्स मीनिंग फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स का मीनिंग बच्चों क्या है देखिएगा, ये फॉल्स रिब्स से यहां से कनेक्ट है वर्टिबल कॉलम से, यहां से कनेक्ट है वर्टिबल कॉलम से, कौन सी 8th 9th और 10th। इसकी साइड में क्या है, एक साइड में वर्टिबल कॉलम है। रिब्स है ऑलवेज फाउंड इन बिटवीन दी वर्टिबल कॉलम और स्टर्नम। वन साइड ऑफ द one end of the ribs connect to the vertebral column, then second end of the ribs connect to the sternum. Which type of ribs? 1 to 7 pair of ribs connect both type of structure. But 8th pair of rib, 9th pair of rib and 10th pair of rib are connected to the vertebral column, but the second end of that type of ribs does not connect to the sternum, but it is a overlap of upper ribs and connect to the upper ribs. Like 8th का second end connect to the 7th, and the 9th rib connect to the 8th rib, and 10th rib connect to the 9th rib. That are ribs known as the false rib. False rib. Then next type of rib, the ribs does not connect the second end of the rib edge in any type of structures, but one end is connected to the vertebral column, and that type of ribs known as floating ribs. 11th rib or 11th ribs pair and 12th ribs pair are floating ribs. फ्लोटिंग रिब्स मीनिंग यहाँ इस टाइप की रिब है ये, तो इसको हम कहेंगे यहाँ फ्लोटिंग रिब्स, जो कहां प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर यहां पर प्रेजेंट होती है, और हेल्पफुल है किसके अंदर, ये हेल्पफुल है किडनी के प्रोटेक्शन में भी ये हेल्पफुल है। तो इन रिब के बीच में ऐसे यहाँ पर जो भी रिब्स है एक क्रॉस मसल्स पाई जाती है, इन क्रॉस मसल्स को क्या कहेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स कहेंगे। तो इस टाइप से रिब्स भी बच्चों अपने अंदर हेल्पफुल है, किसमें, रिब्स हेल्पफुल है अपने ब्रीदिंग के अंदर हेल्पफुल है, जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनाता है। ये बात बच्चों बहुत अच्छी तरह, आई होप यू आर clear understand, crystal clear understand, and you have also a crystal clear knowledge about that type of topic. नेक्स्ट टॉपिक हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।